اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے موصوف صفہ کے بارے میں لرن کیا تھا، تو آج اسی کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ اور ایگزامپلس دیکھیں گے کہ موصوف صفہ ہم کیسے ریکگنائز کرتے ہیں اور موصوف صفہ ہوتا ہے کیا۔ تو موصوف صفہ کیا کرتا ہے؟ صفہ ایک پراپرٹیز ہیں، کسی کی ڈیفائن کرنی ہو تو وہ موصوف ہوتا ہے جس کی آپ پراپرٹیز ڈیفائن کرتے ہیں، اور جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کو صفہ کہتے ہیں۔ اردو میں صفت بھی کہتے ہیں نا، صفات جیسے ہم کہتے ہیں صفات۔ تو اس طرح کل ہم نے ایگزامپل ہم نے لی تھی کچھ، اور ہم نے پڑھا بھی تھا کہ موصوف صفہ کے لیے موصوف اور صفہ کی پراپرٹی سیم ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم کہیں کہ کچھ کریم ایک پراپرٹی ہے، رائٹ، کریم، کریم کا مطلب ہے کہ نوبل بھی آپ کر لیں یا عزت دار، پایا، عزت دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم نے کتاب کو کریم پراپرٹی ڈیفائن کرنی ہے کتاب کی، تو کتاب اور کریم۔ اب اگر کتاب بن ہے تو پھر کریم بھی ہمیں رفع ہوگا، رائٹ، اور کتاب اگر سنگل ہے تو کریم بھی سنگل ہے، اور اس طرح اس کی کامن ہے تو کریم بھی کامن ہے۔ اگر الکتاب ہوتا ہے کتاب کی جگہ اور اس کو ہم نے کریم کہنا ہوتا تو پھر ہمیں یہاں بھی الکریم لگانا، تو الکریم، الکتاب الکریم، تو اس وجہ سے پھر ہمیں یہ میچ کرنا پڑتا ہے پراپرٹیز۔ اسی طرح اگر کتابیں دو ایک سے زیادہ ہوں، کتاب بانی، تو اس کو ہم کیا کریں گے پھر؟ کریمانی۔ اور اگر کتابیں ہم اس کا پلورل استعمال کرتے ہیں، کتب، جو کہ بروکن پلورل ہے، تو کتبن، اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو میچ کرنا پڑے گا۔ اور بروکن پلورل ہم اس کو ایز اے فیمینن ٹریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو فیمینن سنگل، اس کی پراپرٹی بھی، اس کی صفہ جو ہے وہ بھی فیمینن سنگل بنانی پڑے گی، کریم، قیمتن، اچھا کریمتی، کریمتن، کریم، کریمتن۔ اور اسی طرح اگر ہم نے کسی مسلم کی پراپرٹی بتانی ہے کریم من، تو مسلم من بھی اسی طرح کریم من۔ اور اگر مسلم نہ ہو تو کریمونہ، کریمون۔ پراپرٹیز میچ کرتے ہیں تو اس سے پھر اس کی صفہ بنتی ہے جی۔ تو لکھنے میں اسی طرح پڑھنے میں بھی اگر ہم ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید صفہ تو نہیں ڈیفائن ہوئی کسی اسم کی، تو ہم اس کو میچ کر کے دیکھیں گے کہ اس کو میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے ایک کامن فریز ہے، ہم لکھتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ موصوف صفہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ تو ہے، ہونے کے لیے ہمیں میچ کرنی پڑیں گی پراپرٹیز۔ تو رفع ہو گیا، یہ بھی رفع ہے، جینڈر دونوں میسکولن، نمبر دونوں ون ہے۔ اب ہمیں ٹائپ ڈیفائن کرنی پڑے گی۔ ٹائپ کیا ہے؟ اللہ پراپر ہے تو پراپرلی، اکبر بھی پھر پراپر ہی کریں گے اس کو۔ نہیں اکبر پراپر نہیں ہے نا، ال اکبر نہیں ہے، تو اکبر از او، کامن، تو پھر ہم اس کو اللہ اکبر کا ترجمہ ہم ایز اے موصوف صفہ نہیں ہوگا، یہ ایز اے سینٹنس ہے کہ اللہ از گریٹ، اس کا مطلب گریٹ اللہ نہیں ہوگا، تو اللہ از گریٹ ہوگا۔ ٹھیک۔ تو یہ تو میچ ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو آج ہم کچھ اور ایگزامپلس کریں گے، پہلے ہم جسٹ ریویو کرتے ہیں ہم نے جو کل پڑھا تھا اس کو جسٹ سینٹنسز میں۔ تو ہم نے موصوف، ہم نے کہا تھا کہ پہلے آئے گا، پہلے موصوف آئے گا، پھر اس کی جتنی بھی صفہ ہوں گی وہ بعد میں آئیں گی، اور موصوف ہمیشہ ایک ہی ہوگا۔ تو جب بھی صفہ ڈیفائن ہو رہی ہیں تو وہ ایک موصوف کو ہی پوائنٹ کریں گی۔ اور ہم نے کہا تھا کہ صفہ کی اسم خصوصیات اور موصوف کی اسم پراپرٹیز برابر ہو، تو اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اور ٹائپ، تو یہ دونوں ایک جیسی ہونی چاہیے، صفہ اور موصوف میچ ہونے چاہیے، پھر ہم اس کو ایز اے صفہ اور موصوف ہم ٹرانسلیشن میں کریں گے، اور اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اس کو ایز اے صفہ کنسیڈر کریں گے۔ اور صفہ ہمیشہ بعد میں آئے گی، موصوف پہلے آئے گا، صفہ بعد میں آئے گی، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔
मसूफ और सिफा के दरमियान और अल्फाज भी हो सकते हैं। कल हमने जितनी एग्जांपल्स की थी उसमें कुछ कुछ दरमियान में नहीं था, तो आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें दरमियान में और वर्ड्स भी आएंगे। तो ये डिस्टेंट रिलेशनशिप है, इसमें साथ साथ होना जरूरी नहीं है। जैसा कि मुदाफ मुदाफ अलैह में साथ साथ होना जरूरी है, और जार मजरूर में भी साथ साथ होंगे, लेकिन इसमें दरमियान में कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह अल्लाह के नाम अगर साथ साथ हों, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे कॉमन हो, तो उनको मसूफ सिफा नहीं हम शुमार करेंगे। जैसा कि उसकी एग्जांपल है अस्समी उल अलीम, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अल अलीम जो है अस्समी की सिफा है। तो ये अल्लाह ताला के नाम इसी तरह आते हैं ना, रिपीटेड होते हैं, लेकिन असल में ये या तो सेंटेंस में आ रहे होंगे या फिर ये सिफा होंगी, अल्लाह ताला को कर रही होंगी वो पॉइंट। तो इससे शुरू में अल्लाह ताला का वर्ड आ रहा होगा, तो वो फिर उसको हम अल्लाह ताला की सिफात कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे हम के अल अलीम समी की सिफा है। तो इसी तरह ये दो दो कॉमन है, ये कुरान में बहुत दफा आता है कि दो दो सिफात इकट्ठी लिखी होती हैं। तो चाहे ये प्रॉपर हो या ना हो, दोनों दोनों सूरतों में शाकिरुन अलीम प्रॉपर नहीं है, गनीयुन करीम प्रॉपर नहीं है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि करीम ये गनी जो है वो सिर्फ मौसूफ है और करीम सिफा है। तो इस तरह के हम इसको इस कैटेगरी में नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर प्रोनाउन आ रहा है इसमें इशारा या इसमें मौसूल, तो वो मौसूफ नहीं हो सकते। अगर हुम लगा हो, हुम, या हुआ अकबर लिखा हो, हुआ इवन अल अकबर भी लिखा हो, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर अल अकबर भी लिखा हो तो हुआ हुआ हुमा हुम ये कभी भी मौसूफ नहीं हो सकते। ना इसमें इशारा हो सकता है, जैसा कि जालिकल किताबू है, जालिका और अल किताबू दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, लेकिन वो मौसूफ सिफा नहीं है, क्योंकि जालिका इसमें इशारा में शुमार होता है, वो मौसूफ सिफा नहीं होता है। इसी तरह मौसूफ इसम मौसूल की एग्जांपल क्या होती है, अल्लाह जी वर्ड जो होती है। अल्लाजीना। हाँ जी, अल्लाह जीना, इसमें इशारा है हाजा और जालिका और जमायर हुआ वगैरह। इसी तरह जमायर और इसमें इशारा मौसूफ भी नहीं हो सकते, और ना कोई खास नाम भी मौसूफ नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मोहम्मद हम लिखें कि मोहम्मदुन, और अहमदुन हम कहें कि मोहम्मद की सिफा है, अगर ये नाम है तो नाम किसी का अगर खास नाम है वो सिफा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बस हमने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा तो बस इसकी एग्जांपल्स हैं, और थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और तो जैसे सूरह वाशिया, तो पहला आयत है कि वुजूह हुई यौमा इज़िन खाशियतुन। अब वुजूह हुई इसम है शुरू में, राइट, फिर ये दरमियान में एक और ये वर्ड है मौसूफ सिफा है। फिर खाशियतुन। हम्म। अब खाशियतुन का मतलब होता है कि झुके हुए या डरे हुए। डरने तो वाले। खाशियतुन किसकी सिफा हो सकती है, यौमाइजिन वजूह। की तो नहीं हो सकती ना, तो वजूहुन की हो सकती है, तो उसके लिए हमें मैच करनी पड़ती है प्रॉपर्टीज। तो वजूहुन रफा है, राइट, जी। और जेंडर क्या है इसकी, मैं फेमिनन, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल है। वजहुन का ब्रोकन प्लूरल वजूहुन, तो फेमिनन। वजूह। हाँ जी, और सिंगल उसको ट्रीट करेंगे हम और कॉमन करेंगे, इसीलिए जी। खाशियतुन यूज हुआ है, उसका फेमिनन वर्जन यूज हुआ है, खाशियुन यूज नहीं हुआ। तो अगर वजहुन होता है तो खाशियुन होता, अगर वजूहुन है तो खाशियतुन, तो उसका फेमिनन वर्जन हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कुरान में, तो रफा, फेमिनन, वन और कॉमन, तो सब प्रॉपर्टी में है। तो दरमियान में एक वर्ड था एक्स्ट्रा, लेकिन रिलेशनशिप इसकी वजूहन की बनी है इसके साथ, खाशियतुन के साथ। तो वजूहन मौसूफ है और खाशियतुन उसकी सिफा है। इसी तरह आमिलतुन नासिबतुन, अगली आयत, वजूह यौमइज़िन खाशियतुन आमिलतुन नासिबतुन। अब ये तो है। सवाल पैदा होता है ना कि अब इस किसकी ये सिफा डिफाइन हुई हुई है, क्योंकि आमिलतुन का मतलब होता है अमल करने वाले, ये जिन्होंने अमल किए हैं, आमिल कहते हैं ना उसको, आमिल, और उसका जी। फेमिनिन वर्जन आमिलतुन, जिसने अमल किए हैं। और नासिबतुन जैसे नसब वर्ड है ना, नून स्वाद और बा उसका रूट है सेम, तो नसब की तरह मतलब होगा थका हुआ है।
تو عاملاتن اور ناصباتن، اور میننگ کے حساب سے لگتا ہے کہ یہ دونوں کسی کی صفات لگ رہی ہیں، یہ خود سے موصوف نہیں لگ رہا عاملاتن، تو فیمینن استعمال ہوا ہے، تو اس کس کے ساتھ کس کی یہ صفات ڈیفائن ہوئی ہیں؟ یہ وجوہ ان کی. ہاں جی، تو وجوہن دوبارہ یہ اسی کو پوائنٹ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ عاملتن دوبارہ فیمینن استعمال ہوا ہے کہ ایک وجوہن، اور جو وجوہن ہے وہ خاشیتن بھی ہوں گے، عاملتن بھی ہیں، اور ناصبتن بھی، تینوں اس کی، تو نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ تو اس سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آیت اگر ختم ہو رہی ہو تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اگلی آیت اس سے پیچھے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتی، اس کی ریلیشن شپ بن سکتی ہے آیا کی، تو نیکسٹ آیا جو آ رہی ہے اس کی ریلیشن شپ پچھلی آیت سے بن سکتی ہے، جیسے اس آیا میں ہے کہ عاملتن ناصبتن وجوہن کی اس کی صفات ہیں، تو 3 صفات یہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہیں وجوہن کی، اور 2 آیات میں خاشیتن، عاملتن اور ناصبتن، تو سب کی اس کی پراپرٹیز وجوہن کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں تینوں کی۔ تو اسی صورت میں آگے چلتے ہیں، تو تسلا نارن حامیہ، حامیتن تو نارن کا ہے. نصب، رائٹ، نصب ہیں دونوں، اور نار فیمینن ہوتا ہے یا میسکولن ہوتا ہے؟ فیمنن. فیمینن، عرب سیٹس کی کہہ رہے، اسی لیے حامیتن یوز ہوا ہے، تو نار جو ہوگی وہ حامیتن اس کی پراپرٹی ہے، تو نار کی صفہ ہے، نار موصوف ہے، اور حامیتن اس کی صفہ ہے۔ آگے آیت ہے من تسقا من عین آنیتن، عین آنیہ، عین چشمہ، آنیتن کھولتا ہوا، کھولتے ہوا پانی نا، بوائلنگ واٹر والا چشمہ، تو من کی وجہ سے عینن جر ہو گیا، تو کیونکہ عینن کی پراپرٹی آگے صفہ آ رہی ہے نا، تو اسی لیے آنیتن استعمال ہوا ہے، اور عینن ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیمینن ہوتا ہے، تو اسی لیے آنیتن بھی فیمینن، دونوں جر ہیں، دونوں فیمینن، دونوں کامن، اور دونوں ون ہے نا، عیون اس کا جی. آیون، اور عیون اس کا پلورل ہوتا ہے۔ آگے جاتے ہیں تو پھر اسی سورہ میں وجوہ ہوئی یومئذ ناعمۃ، اب وہ وجوہن دوبارہ آتا ہے، اور اس کی اس دفعہ صفہ کیا ہے؟ ناعمۃ، نائم. خوش ہوں گے، وہ تر و تازہ ہوں گے، نعیم ہوں گے، تو وجوہن، تو یہ بعد میں یہ جنت والوں کا ذکر آتا ہے نا، پہلے جہنم والوں کا آتا ہے پھر جنت والوں کا آتا ہے، تو وجوہ یومئذ ناعمۃ، تو اس میں بھی وجوہن کیونکہ فیمینن ہے تو ناعمۃ یوز ہوا ہے۔ فی جنت عالیۃ، تو کون سی جنت ہے یہ؟ جو بلند، عالیہ. تو ہاں جی، جنت کی صفہ کیا ہے کہ وہ عالیت ہے، 3 ہے کہ وہ بلند ہے، عالیہ ہے، اونچی جنت، تو دونوں جار ہیں، اور دونوں فیمینن، دونوں سنگل، اور دونوں کامن۔ فیہا عین جاریت، دوبارہ عین اس دفعہ آیا ہے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں تھی اس کے نصب یا جار ہونے کی، تو عین رفع ہے، اور اسی سے میچ کرتا ہوا اس کی صفہ جاریت. جاریت، کے وہ جاری چشمہ۔ جنت جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ جنت جگہ ہے نا، تو اس کو نہیں، جنت جگہ نہیں ہے، الجنہ جنت جگہ نہیں ہے، عدن جگہ ہے نا، جنت کو باغ کو بھی کہتے ہیں نا، جنت تو باغ ہے، یہ وہ پیراڈائز نہیں ہے، وہ تو الفردوس اور عدن، جنات عدن ہوگا نا، وہ بہت اسپیشل جنت ہے، یہ جنت کامن ہے، کوئی بھی جنت، کوئی بھی باغ۔ عینن جاری ہے، جاری چشمہ، تو عینن فیمینن ہوتا ہے تو جاریتن فیمینن۔ ہاں جی، کیا کوشچن تھا؟ دونوں جر جر ہیں. عینن میں یا جنتن؟ جنتن ہاں جی، عالیت. دونوں میچ کریں نا، جار، دونوں جار بھائی، فی جنتن عالیت، تو فی کی وجہ سے جنتن جار ہوا ہے، اور عالیتن کیوں جار ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو صفہ بنایا اس کا، اسی لیے یہ فی کی وجہ سے نہیں ہے، فی کی وجہ سے انڈائریکٹلی فی کی وجہ سے، لیکن ڈائریکٹ ریزن کیا ہے کہ یہ اس کو صفہ بنا رہا ہے، جنت جنہ کی صفہ ہے، اس لیے ہمیں اس کو میچ کرنے کے لیے اس کو جر کرنا پڑتا ہے۔ فیہا سرر مرفوعۃ، سریر کہتے ہیں بستر کو، سرور اس کا پلورل ہے، بروکن پلورل، تو اسی لیے بروکن. یہ بھی پھر سنگل اور سنگل فیمنن. اور فیمینن ہوگا، تو اس لیے مرفوعۃ استعمال ہوا ہے کہ بلند، ان کے بیڈنگز ہوں گی، بستر ہوں گے، یا مسندیں بھی کرتے ہیں اس میں ترجمہ،
کہ बिछा हुआ होगा कुछ, जैसे तख्त पोश नहीं होते उस तरह की चीज, बेडिंग भी कहते हैं। शरीर, शरीर वैसे बिस्तर को कहते हैं, जैसे इस्तवान शरीर भी है ना वो मस्जिद नबवी में, तो रसूल सल्लम का बिस्तर होता था उस पिलर के साथ, तो इसलिए उसको इस्तवान शरीर कहते हैं। जब रसूल सल्लम करते थे ना वो इत्तिकाफ, तो इसीलिए वो पिलर भी है, तो शरीर उसका प्लूरल है सुरूर। तो सुरूर मरफूअतुन व अकवाबुम मौदूअतुन। अकवाब कहते हैं कप्स को, प्यालों को अकवाब। तो ऐसे प्याले, ऐसे कप्स होते हैं इसका हैंडल नहीं होता, तो उसको अकवाब कहा जाता है। और मौदूअतुन, Okay. अरे मौदूअतुन मीन होता है कि बड़े सलीके से रखे होना। Okay. जैसे इंग्लिश उर्दू का वर्ड है ना, वाओ ज़ाद और आइन, वज़ा इस्तेमाल होता है ना कई दफा, तो मौदूअतुन उसी से बनता है इसका ये वर्ड। मौदूअतुन सलीके से रखे हुए, बड़े तरतीब से रखे हुए अकवाब, कप्स। व नमारिकु मसफूफतुन, नमारिक कहते हैं कुशंस को या गाव तकिए, तकिए लगे हों। मसफूफतुन सफ से आया है, सफ में कतार में तकिए लगे होना है। तो ये अकवाब की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सलीके से रखे हुए हैं। नमारिक की प्रॉपर्टी क्या है कि वो लाइन में लगे हुए हैं सारे। और नेक्स्ट क्या है, वज़ाराबिय्यु मबसूसतुन, और कालीन जो है वो बिछे हुए हैं, मबसूस। तो इस सूरत में सारे आपको ये काफी मसूफ सिफा मिलेंगे। और दो इसमें थोड़े से थे कि कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें जमुमा जिन दरमियान में आता है दो वालों में, तो बाकी तो साथ साथ ही हैं। तो आमतौर पे भी ज्यादातर तो ये साथ साथ होंगे, उसमें तो मुश्किल नहीं होती, आपको इजीली पता चल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब ये दरमियान में फासला हो। यहाँ तो एक वर्ड है ना, तो कई जगह तो काफी ज्यादा वर्ड्स भी होते हैं। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब सूरह गाशिया से हट के हाँ, इसमें तेरह क्वेश्चन, तकल। हाँ जी। ये जो आगे के एग्जांपल्स के सब में जो है ना तनवीन है, ये हाँ, नमारिकु और मसफूफा में तनवीन नहीं है, तो इसका हाँ जी। रीजन है कोई? हाँ जी, एक रीजन है इसमें, नमारिकू में नहीं है, और किस में नहीं? वो जराबीयू। वज़रा बिय्यु। हाँ जी, इसमें नमारिकुन में एक रीजन होता है, इसमें भी इसको अरब ऐसे ही पढ़ते हैं। असल में हमने हमने देखा था ना कि लाइट होने की रीजंस, जी। 4 रीजंस होती हैं ना। उसमें पहली रीजन थी कि अरब उसको उसी तरह लेते हैं, उसको लाइट ही पढ़ते हैं। उसमें था ना नॉन अरब प्रॉफिट्स, और क्या थी उसकी, और क्या थी उसमें लिस्ट में शामिल चीजें? कि जो चीजें हैं। शहरों के नाम, हम्म, जगहों के नाम, ठीक है ना, मक्का, यसरब, इस तरह के नाम, शहरों के नाम कोई भी हों। और था कि ये खवातीन क्या के नाम। लिस्ट थी? हाँ जी, ये क्या लिस्ट थी? जिसमें लाइट, लाइट इसम कौन से होते हैं। लाइट वर्ड्स, अच्छा, लाइट वर्ड्स की। वैसे तो उसको नुमारिकुन होना चाहिए ना, तनवीन नहीं है यहाँ पे। तो इसमें अभी पूरी लिस्ट नहीं मैंने आपको बताई थी, उसमें कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, और उसमें एक वर्ड्स वो होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, ब्रोकन प्लूरल, जिसमें एक अलिफ आता है दरमियान में, लॉन्ग अलिफ, जैसे मसाजिद, हम्म, मसाजिद, उलमा। तो और ये नमारिक भी उसी में आता है ना, इसमें भी अलिफ आ रहा है दरमियान में, ओके। नमारिकु। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, उसमें भी वो लाइट होते हैं लाइट। बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, तो इसीलिए ये नमारिकु लाइट आया, वज़रा भी यू भी इसीलिए लाइट है कि दोनों में ये अलिफ है। ओके। तो इसी तरह कुछ और लफ्ज भी होते हैं, वो अभी जब आते जाएंगे ना तो हम उसकी डिटेल पढ़ते जाएंगे कि कुछ और भी हैं, एक दो कैटेगरीज। तो कुछ एंड पे हम पढ़ेंगे कि लाइट होने की रीजंस है, उसको हम फिर टोटली सारी रीजंस अब डिफाइन करेंगे उसमें। क्योंकि अकवाबुन जो हाँ है जी, वो तनवीन है लेकिन नमारिकु नहीं है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो स्पेशली होता है कि अगर अलिफ से, क्योंकि अकवाब तो ये अलिफ से स्टार्ट भी हो रहा है ना, शायद इस वजह से वो उसको नहीं करते कंसिडर। लेकिन अगर अलिफ शुरू में नहीं है, बस दरमियान में है, तो फिर उसको कंसिडर करते हैं। तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल है सिरातकल मुस्तकीम। अब इसमें दरमियान में वर्ड है, 3 वर्ड है ना, ये सिराता है, फिर का है, फिर अल मुस्तकीम। अब हमें देखना है कि मुस्तकीम इस सिरात की सिफा है या नहीं है, तो हमें प्रॉपर्टीज मैच करनी पड़ेगी ना। तो सिराता नसब, मुस्तकीमा नसब, जेंडर दोनों मैस्कुलिन, राइट।
दोनों नंबर दोनों का 1 है। अब अल मुस्तकीमा तो प्रॉपर हो गया, सिराता प्रॉपर है या नहीं है? कॉमन। कॉमन है। और सिराता और प्रॉपर होगा, का, काफ की वजह सिराता, से प्रॉपर नहीं होगा वहां पे। हाँ, सिराता और का की रिलेशनशिप क्या है? मुदाफ तुम्हारा मुदाफ रास्ता। मुदाफल है। जब मुदाफ अलैह होता है तो मुदाफ को डिक्लेयर करने के लिए हमें मुदाफ अलैह को पहले देखना पड़ता है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। तो क्योंकि ये प्रोनाउन है ना, तो ये प्रॉपर है, तो इस वजह प्रॉपर से ही है। सिराता भी प्रॉपर। हाँ, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये उसकी अल मुस्तकीम सिराता की सिफा है। तो इसका तर्जुमा होगा कि तुम्हारा सीधा रास्ता, सिराता कल मुस्तकीम, सीधा रास्ता तुम्हारा या तुम्हारा सीधा रास्ता, दोनों तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अक्सरहुम शाकिरीन। अब दरमियान में प्रोनाउन दोबारा आया हुआ गुम हो है। गया। हमने देखना है कि अक्सर और शाकिरीन में है या नहीं है इसकी इस सिफा मौसूफ। तो अक्सरा नसब नजर आ नसब रहा है, है, शाकिरीन भी शाकिरीन भी नसब है। नसब हो सकता है, और जेंडर दोनों मैस्कुलिन लग रहे हैं भी दोनों मैस्कुलिन। प्लूरल। और अब नंबर पे देखना है, तो अक्सर नंबर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कह दें ये तो प्लूरल है ना, शाकिरीन तो क्लियरली प्लूरल है, मैस्कुलिन प्लूरल। अब अक्सर में भी प्लूरल हो कि अक्सर अक्सरियत में शामिल होता है ना, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के इसको हम कहते हैं चलो प्लूरल। अब लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी शाकिरीन, क्लियरली क्या है, कॉमन। अब अक्सर कॉमन है या नहीं है? सारा ये भी मुदाफ ये मुदाफ मुदाफ अलैह है, तो मुदाफ अलैह ने जी की वजह से ये प्रॉपर होगा, प्रॉपर है। तो ये फिर मौसूफ सिफा नहीं हो सकता। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि शुक्र करने वाले अक्सर लोग, ये इस तरह से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। हम क्या है, उनमें से उनमें से अक्सर शुक्र करने वाले, इस तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन उसकी आप मौसूफ सिफा की तरह ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, और मौसूफ सिफा है भी नहीं है। अब यहाँ पे मिन जहन्नमा मिहादुन व मिन फौकिहिम गवाशिन, तो इसमें अगर इसम देखें तो हमें 3 नजर आ रहे हैं, राइट। बाकी तो मुदाफल है या फौकिहिम स्पेशल मुदा, बाकी मिन है। अब हमने देखना है कि गवाश होता है लपेटने वाला, राइट। तो हमने गवाश देखना है कि एज ए सिफा तो नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ किसी, जैसे सूरह गाशिया भी इसी तरह ना, ढांपने वाली, तो ये गवाश भी वही वर्ड है। तब गवाश देखना है हमने कि जहन्नम का वो की प्रॉपर्टी तो नहीं है, जहन्नम की सिफा तो नहीं है। तो मैच करने के लिए जर है गवाश, जहन्नम क्या है, मिन की वजह से क्लियरली ये जर ही है। जर। मैस्कुलन है या फेमिनन है जहन्नम? फेमिनिन। फेमिनिन फेमिनन, तो मैच नहीं हुआ ना, गवाश तो हमें नहीं लग रहा है कि ये फेमिनन, मैस्कुलन लग रहा है। और वैसे भी ये, और गवाश की और प्रॉपर्टी क्या है, सिंगुलर एंड कॉमन, जबकि जहन्नम कॉमन नहीं होता है, प्रॉपर होता है। जहन्नुम एक जगह का नाम है, खास जगह का नाम। तो ये नहीं है, गवाश जहन्नुम की प्रॉपर्टी भी नहीं है। इसी तरह मेहात भी जहन्नुम की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि क्लियरली उसकी पहली प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही, रफा नहीं। तो इसका मतलब है कि जहन्नम की ये सिफात नहीं है, ये जो भी आगे डिफाइन हुआ। तो जैसे भी इसके ट्रांसलेशन करेंगे हम बाद में, लेकिन ये जहन्नम को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं ये दो सिस्टम, ये हमें पता चल गया यहाँ से। नेक्स्ट एग्जांपल, दीना हुम लाहवम व लाइबन। तो यहाँ दीना है, लाहवन है, लाइबन है, 4 है। तो दीन की सिफा है लाहवन या और लाइबन या नहीं है, ये हमने यहाँ पे देखना है। तो कौन सी है प्रॉपर्टी, नसब ही है दोनों। दोनों नसब हैं, दोनों सिंगल, दोनों मैस्कुलन। तो लास्ट प्रॉपर्टी ये तो क्लियरली कॉमन, क्लियरली तीन वो तो प्रॉपर हो गया ना, होम की प्रॉपर हो वजह गया से। होम की वजह से। तो ये भी सिफात नहीं है, दीन की सिफात नहीं है लाहवन और लाइबन, तो दीन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे ये दोनों वर्ड्स। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। तो इसमें भी 1 और 2, यही 2 इसम है ना, मोमिनिन और सादिकीन, है। तो अब ये मैच कर रहे हैं इसका, ये सच्चे मोमिन
तर्जमा करेंगे या एक डिफरेंट तर्जमा होगा? की मुमिनिन तो जार मजरूर हो गया। जार हो गया, सादिकीन भी जार हो सकता है, तो हम कहते हैं कि चलो जार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैस्कुलिन, राइट? लना जो है वो फिर वो नहीं, लना तो डिफरेंट वर्ड्स है ना, वो तो आप छोड़ दें, वो लना इसम नहीं है ना, ला तो वो इस हर्फ ऑफ जार है। तो मैं ये समझ हाँ रही जी, थी कि वो हाँ जी, ये तीनों तो निकल गए ना दरमियान से वाले तीनों वर्ड, मोमिन और सादिकीन। अब हमने तो, देखना है कि इसका नंबर, जी मोमिन सिंगल है या प्लूरल है? प्लूरल सिंगल है ना, मोमिन एक सिंगल एक है और सादिकीन प्लूरल है। हाँ लेकिन ये सादिकीन प्लूरल है। तो ये मोमिन को डिफाइन नहीं कर रहा है ये सादिकीन, बल्कि ये किसी और तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी, हम इसको सच्चे मोमिन की तरह ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल इससे हम पता चलता है कि कब काफी दफा होता है कि वो आपको डिफाइन नहीं कर रहे होते, हालांकि हम देखने में लग रहा होता है कि मे बी कर रहे हो। तो अब और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, जिससे तो लंबी आयत है, वकालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरानु अला रजुलिम मिनल क़रयतैनि अज़ीमिन। तो यहाँ से शुरू करें, पहले तो वो यहाँ पे सारे इसम है हाज़ल कुरान से लेके। तो जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें जहन में आता है ना कि ये अजीम, अजीम का मतलब सबको पता है, उर्दू वालों को भी पता होता है। अजीम किसको कहते हैं? ग्रेट को। तो क्लियरली ये सिफा ही होती है ना ग्रेट, किसी कौन सी चीज ग्रेट है। तो क्या तर्जमा बनेगा इसमें कि अगर इसम कुरान भी है, यहाँ पे हाजा तो निकल गया ना, हाजा तो कभी सिफा नहीं हो सकता। एक कुरान है, रजुल है और करियतैन है, तीन इसम है इससे पहले। तो अजीम कौन सी चीज अजीम है? कुरान अजीम है या रजुल अजीम है या करियतैन अजीम? कुरान अजीम। तो इसको जरा दोबारा लिखते हैं, जरा हाईलाइट करके। तो कुरान, तो कौन सी चीज अजीम है? तो अजीम की हम कुरान जो है कुरान वो अजीम है। इनके साथ कौन अजीम है? अजीम ये रजुलिन है, क्योंकि वो जर है, वो भी जर है। अजीमिन जार हो गया। अजीम, अजीम की पहले प्रॉपर्टीज, ग्रेट अजीम है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले, मैस्कुलिन, सिंगुलर और कॉमन, राइट? कॉमन। तो अब हमने मैच करना है ना इसको। अब अजीम, अब अगर तो ये उर्दू होती या इंग्लिश होती तब तो हम कहते हैं कि जहाँ पे अजीम है वही चीज अजीम है ना, वो तो साथ साथ होते हैं हमेशा। तो ये सेम चीज मैं भी पहले जब आयत पढ़ता था तो यही मैं समझता था कि दो शहर, वो अजीम शहर हैं दो, उसकी बात हो रही है कि दो शहर अजीम हैं। लेकिन अगर अब हमने रूल्स पढ़ लिए हैं तो रूल्स में हमें मैच करते हैं, तो क्या तो करियतैन क्लियरली प्रॉपर हो दो, गया। नंबर दो हैं, प्रॉपर भी है और मैस्कुलिन भी नहीं है, फेमिनिन, राइट? करियतैन, करिया, ता दरमियान में आ रहा, तो में जर तो हो सकता है, जर तो है क्योंकि मिन की वजह से। रजुलिन की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ये जर है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है और कॉमन, कॉमन है, ये प्रॉपर होने की कोई वजह नहीं। कुरान की प्रॉपर्टीज, अल कुरान की देखते हैं तो रफा है, रफा मैस्कुलिन है, सिंगुलर है और प्रॉपर। प्रॉपर है। किसकी चीज, कौन सी प्रॉपर्टीज मैच हुई हैं? रजुलिन रजुल। रजुलिन। अजीम तो अजीम कौन है? रजुलिन। तो उसके जो भी वो कह रहे हैं वकालू, वो कह रहे हैं कि क्यों नाजिल नहीं हुआ ये कुरान अला रजुलिन मिनल करियतैनी अजीम, के दो शहरों में से एक अजीम आदमी पे, ठीक है ना, एक अजीम आदमी पे। तो ये तर्जमा इसका बनेगा। अगर हम कहेंगे कि कुरान अजीम, अजीम कुरान क्यों नहीं नाजिल हुआ, तो वो सही ट्रांसलेशन नहीं है। या हम ये कहें कि क्यों कुरान नाजिल नहीं हुआ आदमी में से जो दोनों अजीम शहरों में से था, वो भी नहीं तर्जमा सही। तो अजीम कौन है? रजुल अजीम, रजुलिन रजुल अजीम है। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स में जहाँ कंफ्यूजन होती है ना, जहाँ तो वो तो सूरह गाशिया तो सिंपल है ना, एक मौसूफ है साथ ही सिफा है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन कोई नहीं। इस तरह की आयत में
कंफ्यूजन होती है कि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये सिफा किसकी सिफा है। ये अब 3 इसम आए हुए हैं पीछे, तो किसी एक की है ये, सबकी भी नहीं हो सकती, राइट। तो इस सूरत में जो ये हमने जो पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज मैच करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा है, किसकी सिफा डिफाइन हुई है। हम्म तो इसी तरह अगर हमने उर्दू में हमने ट्रांसलेशन करनी हो कि मेरे दादा की लंबी दाढ़ी, तो अब इसको अरबी में ट्रांसलेशन करना हो तो कैसे करेंगे ट्रांसलेशन? दादा को कहते हैं जद, जद्दी। लंबी को कहते हैं तवील, दाढ़ी को कहते हैं लिहयतुन। तो अब क्या, कैसे हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें? पहले लहियतुन आएगा, लहियतुन मेरे दादा, लहियतुन पहले आ जाएगा। लहियतुन दाढ़ी मेरे दादा की लंबी, ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले क्या हमने सोचना है कि उर्दू में देखना है कि रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं। मेरे जद्दो लहिया दादा, तवीलन। दादा मौसूफ है। हाँ, मेरे दादा, ये इसकी रिलेशनशिप कौन सी बन रही है? मेरे दादा अगर कहते हैं तो क्या है ये? जद्दी। मुदाफ जद ले। मुदाफल है, राइट। दादा की दाढ़ी है कि दादा की लंबी है? लंबी है। दादा की दाढ़ी दादा की है ना, लंबा तो उसकी हम्म सिफा है। हम्म तो ये दाढ़ी दादा की भी मुदाफल है। तो पहले सबसे हमने मुदाफल है, क्योंकि उनको इकट्ठा रखना होता है ना हमेशा, मुदाफल को, तो हम वो डिफाइन करेंगे। तो दादा की दाढ़ी क्या होगा? लहयती जद्दी। लेहिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेहिया लाइट करना पड़ेगा पहले तो, राइट। लेहिया फिर जद आ गया। अब जद और मेरी भी है, तो फिर हमने क्या करना है? जद्दी, ये जर होगा, राइट। जद्दी क्या है? जर। जद रिलेशनशिप क्या है? लेहिया जद्दी है ना, तो जद्दी जर होगा ना यहाँ पे, राइट, जी। क्योंकि जो मुदाफ इलेह है। मुदाफ तो ले। फिर या हमने लगाया हुआ, वो या खुद भी जर है। अब हमने उसकी डिफाइन करनी है, उसकी खुसूसियत। सिफा, तवील। हाँ, अब इलेन हो। तवील, तवील किसकी सिफा है? जद की या लेहिया की? लहया। तो हमें लेहिया से इसको प्रॉपर्टीज को मैच करना पड़ेगा। तो हमें इसको रफा बनाना पड़ेगा, तवील। सिंगुलर बनाना पड़ेगा, फेमिनन के मैस्कुलिन। फेमिनिन। तो तवीला तो। तवीलतुन करना पड़ेगा फिर। तवीलतु। तवीलतुन, तवीलतुन, क्योंकि इसको तो लाइट नहीं करना ना, तवील तो तवीलतुन नहीं होगा। तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये लाइट है और ये लाइट नहीं है, सिर्फ स्टेटस हमने देखना है ना, लाइट और हैवी तो नहीं देखना हमने, वो तो कंडीशन में नहीं है। तो लेहियातु जद्दी तवीलतुन, क्योंकि तवीलतुन डिस्क्राइब कर रहा है लेहियातुन को, तो उससे हमें मैच करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है ये, मेहरबान खुदा का रसूल। तो मेहरबान रऊफ कर लें इसका, खुदा अल्लाह कर लें, और रसूल का तो सबको पता ही है, रसूल ही है। रसूलुल्लाह। इसको क्या करेंगे हम? सबसे मुदाफल है कौन सा है इसमें? खुदा का रसूल। खुदा का तो खुदा रसूल। का रसूल को हम कैसे लिखेंगे? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ही। ही। हम्म, अब मेहरबान कौन है, अल्लाह या रसूल? अल्लाह। रसूल। मेहरबान अल्लाह। खुदा है कि मेहरबान रसूल है? अल्लाह है अल्लाह मेहरबान है। तो रऊफ की प्रॉपर्टीज हमें किससे मैच करनी है? रसूल। अल्लाह से, अल्लाह के वर्ड से। तो अल्लाह जर है, तो रऊफी भी होना चाहिए। मैस्कुलिन है दोनों, राइट, सिंगुलर भी हो गए दोनों। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन और प्रॉपर। कॉमन एंड प्रॉपर। तो हमें रऊफ को इस यहाँ पे कॉमन है, उसको हमने प्रॉपर बनाना पड़ेगा ना, कि वर्ड अल्लाह प्रॉपर है। तो अलिफ लाम आप लगा के इसको प्रॉपर बनाएंगे, रसूलुल्लाह रऊफी। क्यों?
کیونکہ میچ کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سے جو بھی ورڈ، اللہ کی جو بھی پراپرٹیز. اب اس کو تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کر دیں، آگے پیچھے کر دیں تو خدا کا مہربان رسول. اب اگین رسول اللہ ہی تو اسی طرح ہو گیا نا، اس میں تو کوئی چینج نہیں. رسول رؤوفن اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ راؤ. اب کس کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کو؟ رسول رسول کے ساتھ. تو اس کو رفع ہونا چاہیے اور پراپر ہونا چاہیے، کامن ہونا چاہیے. کامن پراپر رسول اللہ کے ہے نا، تو اللہ از پراپر، دین اللہ کا ورڈ پراپر ہے تو رسول بھی پراپر. تو ادھر بھی لگانا پڑے گا آپ کو. اب دیکھیں کہ ایک زبر اور ایک زیر اور ایک پیش کرنے سے میننگ اس کا ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے چیز سینٹنس کا، رائٹ. تو اس میں ہم نے رؤفی کہا تھا تو وہ مہربان خدا کا رسول تھی اس کی ٹرانسلیشن. جبکہ رسول اللہ الرؤوف بنتا ہے تو وہ پھر رسول جو ہیں وہ کائنڈ ہے. ہاں جی. تو صرف ایک آپ حرکہ چینج کرنے سے میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے پورے سینٹنس کا. تو اس طرح یہ ورک کرتا ہے آپ کا موصوف اینڈ صفہ. تو اردو کی اس لیے میں نے اگزامپل دی تھی کہ اردو سے اگر عربی میں کریں تو پھر آپ کو اور زیادہ سمجھ آتی ہے کہ چیز کیسے وہ آپ اس کو کیسے وہ مینیج کرتے ہیں اور کیسے اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل اور کچھ ایگزامپلس کریں گے اسی کی، موصوف صفہ اور باقی فریگمنٹس بھی درمیان میں آئیں گے اس کے. تو انشاءاللہ اور پریکٹس کریں گے آج. تو کوئی کویشچن ہو اس میں؟ جی ایک کوشچن تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو آپ بتا رہے تھے کہ ساتھ ساتھ آتے ہیں تو وہ صفہ نہیں ہو سکتی، صفہ موصوف نہیں ہو سکتے. ہاں جی، وہ آپ موصوف صفہ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے. لیکن اگر اس سے پہلے اللہ کا نام آ رہا ہے ہاں جی تو پھر وہ دونوں پھر نام ہو سکتا پھر ہو سکتے ہیں. ہے. ہاں جی پھر ہو سکتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایز اے صفہ نمبر 1 اور صفہ نمبر 2 آئے گی. آیت الکرسی میں ہے تو الحی القیوم صفہ ہو سکتی ہے. ہاں جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اوکے ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ درمیان میں ہوا بھی آ گیا ہے نا آگے، تو اس صورت میں اس کی ٹرانسلیشن پھر ہم صفہ موصوف کی طرح نہیں کریں گے، ڈیفرنٹ کریں گے کہ وہ دو جملے بن جائیں گے وہ پھر. لیکن جیسے پراپر اللہ کا نام آ رہا ہے اور پھر ہے ہاں جی، تو پھر وہ اللہ بھی آ رہا ہے، ایون رب بھی آ رہا ہے اگر، تو پھر وہ ہے. ہاں جی پھر بھی اس طرح ہے. ہاں جی رب بھی آ رہا ہے، کوئی اسی طرح اللہ کے لیے کوئی ورڈ آ رہا ہے تو اس میں موصوف صفہ ہوں گی. لیکن اگر وہ کٹھے کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے. اس سے پیچھے کا کچھ اگر کوئی اسم آ رہا ہے اس کی ہو سکتی ہیں وہ دونوں، لیکن وہ ایک دوسرے کی نہیں ہو سکتے ایون دو کہ وہ میچ کر رہا ہے سب کچھ. ہاں جی اوکے جزاکم اللہ خیرن. چلیں آج کا لیسن آئی تھنک کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کی موصوف صفہ کی کافی، اور باقی فریگمنٹس بھی کیسے آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو کل ہم جو پریکٹس کریں گے نا اس میں باقی فریگمنٹس بھی ہوں گی، تو اس کو ہم اور دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ورک کرتی ہیں سب فریگمنٹس. جزاکم اللہ خیرن. اب دعا کر لیتے ہیں. بھائی جان تو آئے ہوئے ہیں، دعا کرائیں گے آپ یا عادل بھائی کرا دیں؟ چلو عادل آپ کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الکریم. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. آمین. جزاکم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.